Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, in previous classes we were talking about fuels management theory. Fine. In that video we have completed with contribution given by Henry Fayol. Fine. We have talking about how that person Henry Fayol is known as the father of modern management. Okay? And next we discussed about how efficiency of organization can improve by managerial activities. Fine. And we have discussed about the contribution of Henry Fayol, जहां पर हमने बात की थी Henry Fayol has given many steps of management, जिनको हमने नाम दिया है process of management या फिर function of management. ठीक है. एंड नेक्स्ट हमने ये भी बात की थी कि हेनरी फ्योल ने ये भी बताया हमको कि एफिशिएंसी टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग टेक्निकल लेवल के साथ साथ हमारी मैनेजरियल लेवल पे भी रिक्वायर्ड होती है. Fine. So basically we have discussed with all these points in previous video, and in today video we are going to discuss about the principles of management given by Henry Fayol. And you know that these principles are used by each and every organization. Fine. Why? Because these kind of principles are pervasive in nature. हमने जैसे previously बात की है. ठीक है. And आज हम बात करेंगे एक एक्रोनियम की, एंड एक्रोनियम के साथ कैसे आप 14 प्रिंसिपल्स को ध्यान रख पाते हो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स. आई लेट यू नो इन दिस वीडियो. फाइन. सो देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फाइन. सबसे पहले बेटा एक आपको क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय हेनरी फ्योल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. सो यू शुड नो दैट देयर आर 14 प्रिंसिपल्स of management given by Henry Fayol. Fine. अब ये 14 principles कौन कौन से हैं, इनको हम कैसे रिमाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार हम उनको लिखना स्टार्ट करते तो एक या दो हम प्रिंसिपल भूल ही जाते हैं. सो इसका एक राइट वे है, एक शॉर्टकट है जिसकी वजह से आपको ये याद रहेगा. ये आपको किसी भी बुक और किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, ये मेरा एक्रोनियम खुद का बनाया हुआ है. सो आपको इसको फॉलो करके सारे 14 प्रिंसिपल्स के नेम अच्छे से ध्यान रहेंगे. फाइन. लेट्स स्टार्ट. जिसमें मैं आपको एक्रोनियम दूंगी DAD, डैट, UC, OIC, your SS. This is the acronym. You can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. I have mentioned 14 alphabets over on the board. Fine. जहां पे आपको ये पता चलेगा ये मैंने एक्रोनियम कैसे बनाया. सबसे पहले देखिए एक्रोनियम याद करने का तरीका है, एक बच्चा अपने पापा को बोल रहा है डैड, DAD, पापा. UC, हम लोग आज की जनरेशन है, बच्चे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम शॉर्टकट में बात करते हैं. फाइन. UC, इसने YOU की जगह U बोल दिया, CSEE की जगह इसने C बोल दिया. डैड UC, ये बच्चे ने बोला. अब पापा क्या बोल रहे हैं, OICSEE. अब पापा ने C ना यूज करके पूरा C यूज किया, क्योंकि पापा पुराने टाइम के हैं तो उनको पूरी फुल फॉर्म आती है. ठीक है. अब पापा ने भी फिर IC बोल के पापा ने बोला योर. अब पापा ने योर YOUR ना करके पापा ने UR शॉर्ट में बोला अपने बच्चे को SS. This is the acronym for reminding 14 principles of Henry Fayol, so that you will able to recall all the names in these principles. कैसे? First D stands for division of work. A stands for authority and relationship. Authority and responsibility. Third stands for D, discipline. Next, U stands for unity of command. C stands for centralization and decentralization. O stands for principle of order. I stands for initiative.
S stands for subordination of individual interest on general interest. ये मैंने शॉर्ट में लिखा है. IA stands for individual interest and GI stands for general interest. And E stands for equity and another E stands for esprit de corps. U stands for unity of direction. R stands for remuneration. S stands for stability of tenure. And another S stands for scalar change. Now you can check it out in your book that all 14 principles are covered by this shortest acronym, that is DAT. You see, फिर DAT बोल रहे हो, I see your SS. ठीक है, मतलब बच्चे ने पापा से पूछा, पापा क्या आपने देखा? पापा बोल रहे हैं ओ आई सी, मैंने देखा तुम्हारा स्क्रीनशॉट SS. हम स्क्रीनशॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SS. फाइन. सो बेसिकली दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. आई होप ये आपको एक्रोनियम के थ्रू 14 प्रिंसिपल्स याद करने में, रिकॉल करने में बहुत बेनिफिट होगा. फाइन. तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन लेट्स गो फॉरवर्ड. फाइन. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. वन बाय वन अब सबकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल की, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क. देखिए मैंने ये प्रिंसिपल यहाँ लिखती जाऊंगी, इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखती जा रही है. मैं वो क्लियर नहीं करती हूँ, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट होता है, फिर बार बार इसको वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाता है, हम शॉर्ट में निपटाते हैं. तो वन बाय वन में यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दूंगी, यहाँ से हम बात करेंगे. सबसे पहले बेटा हम पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क. नाम से ही पता चल रहा है व्हाट यू मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है वर्क को डिवाइड कर दो. व्हाट फ्यूल सजेस्टेड you should divide the work according to the expertise level of the person. अगर आप एक बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसके टुकड़े करके उस बंदे को एलोकेट करते हो, दैट पर्टिकुलर बंदा और बंदी इज प्रोफिशिएंट इन दैट फील्ड, सो इट विल बी बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दैट पर्सन टू. व्हाई? बिकॉज यू नो दैट बेटा डिवीजन ऑफ वर्क में अगर हम एक कीवर्ड की बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ वर्क का एक कीवर्ड हमारे पास आता है स्पेशलाइजेशन. ठीक है, एंड एक और आता है इंप्रूव एफिशिएंसी. नाउ what Fayol suggested if you are going to allocate the work according to the expertise level of that person, so ultimately the efficiency of that work will be improved. पहली बात. दूसरी बात, if you will able to allocate jobs, allocate tasks according to the specialized area of that particular person, so ultimately that particular person will get expertise on that field and ultimately the specialization will come automatically. सो फ्योल ने डिवीजन ऑफ वर्क में हमारे दो कीवर्ड की बात की है जहां पे हमें पता है स्पेशलाइजेशन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी. फाइन. अगर हम ये प्रिंसिपल अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है बेटा, अगर आप पूरा का पूरा एक बड़ा टास्क बंदे को एलोकेट करा दोगे, सो अल्टीमेटली देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. द प्रॉब्लम विल बी specialization will not be there, and secondly you cannot able to improve the efficiency of the worker. Why? Because you are not allocating the job according to the proficient level of that particular person, so ultimately the efficiency will never be improved in the organization. Fine. So these are the keywords for first principle. I hope this is clear to you. फाइन. चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत लंबा बात नहीं करेंगे, कीवर्ड्स पे ही डिफाइन करती हूँ मैं, आपको सब जो याद रहेगा. पहला प्रिंसिपल डन. अब चलते हैं हम दूसरे प्रिंसिपल की तरफ. दूसरा प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ व्हाट Fayol suggested there should be authority and responsibility in the organization. भाई होगा ही होगा. Why? Because
What do you mean by authority? Again note the keyword beta. Authority means power to decision making, and responsibility means obligation to do the work. So authority मतलब power is the keyword, responsibility मतलब obligation is the keyword. Fine. What Fayol suggested? Fayol suggested there should be equality between authority and responsibility. Fine. दोनों authority and responsibility equal होनी चाहिए. There should be balance between authority and responsibility. अब if authority is greater than responsibility, so there is the problem. And vice versa, if responsibility is greater than the authority, again there is a problem. What is the problem? If authority is greater than the responsibility, so there will be misuse of powers. And if responsibility is greater than the authority, again there will be a problem. What kind of problem will arise in the organization again? Then completion of task will not be there. Fine. So what Fayol suggested? Fayol said there should be parity between, there is the keyword authority and responsibility में हम बोलेंगे यहाँ पे parity is the keyword. There should be parity, we can say balancing between authority and responsibility. अब आपका एक इससे MCQ रेडी हो जाता है. आपको एक MCQ आ जाता है एग्जाम में. According to the principle of Fayol, authority and responsibility should be first option balance, second authority greater than responsibility, third responsibility greater than authority, and fourth all of the above. आपको लगेगा all of the above authority responsibility हमने पढ़ा है, that will be the answer. No, answer will be there should be parity. मतलब first वाला option authority equals to responsibility. Equality हो जाएगा, parity हो जाएगा, balancing हो जाएगा. What will be the keyword? वो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो होगा, बट आपको ध्यान रखना होगा दोनों बराबर होने चाहिए. फाइन. एक बार इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं. चलिए अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की, दैट इज डिसिप्लिन. देखिए डिसिप्लिन हम लोग अपने डेली लाइफ में डेली बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में, है ना. व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन, क्या होता है डिसिप्लिन. तो बेटा बहुत आसानी से आपको समझना होता है डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है. डिसिप्लिन का मतलब होता है, अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अ कीवर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ agreement. What Fayol suggested? Fayol said there should be discipline in the organization. Obviously, हम अपनी डेली लाइफ में भी कोई भी काम कर रहे हैं, there should be discipline. There should be some code of conduct. There should be some rules and regulations for that agreement. What Fayol suggested? Fayol said there should be discipline in both the parties. Like if you're talking about subordinates, you're talking about the superior, both level should follow some discipline in the organization. Why so? Because there should be fair agreement, there should be fair terms and conditions between both the parties, superior and subordinate. Why so? So that there will not be chaos in the organization, so that there will not any kind of problem, any kind of confusion, any kind of we can say any kind of scatteredness in the organization नहीं होगा. कब? When you are following some discipline, when you are following some code of conduct. I'll explain this principle with the help of one example. Like अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत रिसेशन है, डाउनफॉल हो रखा है, डिक्लाइनिंग फेज में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्कर्स ने मैनेजर को बोला ठीक है आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है, वी आर रेडी टू डू द ओवर टाइम वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. सो मैनेजर बहुत खुश हुआ कि चलो भाई मेरा वर्कर ऐसा है कि मेरे लिए काम करने के लिए रेडी है. फाइन. दिस इज द अग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ, और उन्होंने उसके बारे में ये भी नहीं कहा कि अब मैं एक्स्ट्रा पे करूं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन एक डाउनफॉल में है, अगर कल को ऑर्गेनाइजेशन डाउनफॉल में जाता रहा तो हमारी जॉब भी खतरे में आ जाएगी, तो बेहतर है इसको हम अप स्टेज पे लाते हैं. अब एक टाइम के बाद ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे लेवल पे आ जाता है, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर कि वो अपने जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है या उसको एक्स्ट्रा गेन मिला है ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू हार्ड वर्किंग ऑफ द वर्कर्स, सो उसको उसका कुछ पार्ट एज एन इंसेंटिव, एज एन बोनस अपने बंदों को बांटना चाहिए. फाइन. किनको? एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को. बट मैनेजर ने ऐसा नहीं किया. मैनेजर ने बोला अरे यार ये तो अपने घर के बंदे हैं, कोई बात नहीं छोड़ो, हम शेयर होल्डर को बोनस दे देते. दिस इज द
violation of discipline principle. Why? Because both parties are not basically not thinking about each other. वर्कर ने सोचा मैनेजर के बारे में, बट मैनेजर ने वर्कर के बारे में नहीं सोचा. सो व्हाट इज दिस? बेसिकली दिस इज नॉट द good agreement between both the parties. So what Fayol said, Fayol suggested there should be discipline in point of view of both the parties, whether we are talking about subordinate point of view or whether we are talking about superior point of view. Fine. So discipline के मैंने आपको keywords दे दिए. Again अब चलते हैं fourth principle पे. चलिए fourth principle कौन सा ले लेते हैं हम? फोर्थ प्रिंसिपल हम ले लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है. अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है, मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊंगी. यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बताता है? देयर शुड बी यूनिटी इन कमांड. यूनिटी मतलब बेसिकली हमारे वर्कर के ऊपर, अगर हमारा एक वर्कर है उसके ऊपर कितने बॉस होने चाहिए? ओनली वन बॉस शुड बी देयर, ओनली वन सुपीरियर शुड बी देयर. व्हाई? बिकॉज अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया गया, आपको मैं रिमाइंड करा देती हूँ, टेलर की थ्योरी में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन द फंक्शनल फॉर्मेशनशिप कॉन्सेप्ट, जहां पे हमने बोला था देयर शुड बी 8 बॉसेस ऑन अ वन वर्कर. बट फ्योल ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है. क्या बोला है? फ्योल ने बोला 8 बॉस नहीं होने चाहिए भैया, 1 बॉस ही होना चाहिए. वाई? अगर 8 बॉस आप इसके सर पे बैठा दोगे, इसके पास 2 चांस होंगे. एक तो ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप हो जाएगा, बच जाएगा. कैसे? ये बोलेगा सर मुझे बॉस 1 ने ये काम दे दिया था इसलिए मैं बॉस 2 का काम नहीं कर पाया. दूसरा, ये बंदा कंफ्यूज हो जाएगा. फाइन. एंड कहीं ना कहीं जो बॉसेस यहाँ पे बहुत सारे अगर हम ला देंगे तो इनकी एक दूसरे की जो ईगो होगी वो क्लैश करेगी. क्यों? क्योंकि उनको लगेगा यार ये बंदा जो वर्कर है हमारे अंडर, ये मेरा काम नहीं कर रहा, सामने वाले का काम कर रहा है. सो दैट वॉज द नेगेटिव पॉइंट इन द टेलर थ्योरी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो. अगर आपको देखना देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे. फाइन. बट अगर हम फ्योल की प्रिंसिपल की बात करें जो हम कर रहे हैं, तो फ्योल ने बोला एक बंदे के ऊपर आप एक ही सुपीरियर बैठाइए, क्योंकि ये बंदा ना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच पाएगा, इसका प्रॉपर सुपरविजन हो पाएगा, एंड ये बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में भी अच्छे से रोल प्ले करेगा. दूसरा, इस बंदे की जो सुपीरियर लेवल पे बैठा है इसकी किसी के साथ भी ईगो क्लैश नहीं होगी, ना ही इसको कोई केओस दिखेगा. ये एक बंदे को ही आप उसकी एक्टिविटीज को देखेगा, उसको गाइड करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा और उसी से काम कराएगा, और ये बंदा इसी बंदे को अकाउंटेबल भी होगा. सो व्हाट फ्योल सजेस्टेड, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड. आप जो कमांड दे रहे हैं उसमें एकता होनी चाहिए. एकता इन द सेंस ओनली 1 पर्सन शुड बी देयर ऑन 1 वर्कर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फाइन. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. यूनिटी ऑफ कमांड इज डन. फिफ्थ प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इसको शॉर्ट में लिख लिया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों टर्म्स को पहले समझ लेते हैं. व्हाट डू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हेन डिसीजन मेकिंग पावर्स रिसाइड इन फ्यू हैंड्स. फ्यू हैंड्स, कुछ थोड़ी सी मतलब पावर कुछ ही लोगों के हाथ में. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन. एंड व्हाट डू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? वेयर डिसीजन मेकिंग पावर रिसाइड्स in multiple persons at multiple level in the organization. ठीक है. अब centralization, decentralization both are important for the point of view of organization, but Fayol said there should be, again note the keyword, there should be balance between centralization and decentralization. If again वही वाली बात आती है, if centralization will be greater than decentralization, so there will be problem. If decentralization is greater than the centralization, again there will be problem. So what should be there? There should be balancing and parity between both the terms centralization and decentralization. अब फ्योल ने ये भी बताया, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक लार्ज लेवल पे वर्क कर रहा है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है आपका, सो देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन. व्हाई? बिकॉज एक बंदा टॉप लेवल पे जो बैठा है वो ही सारी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन वहां पे होगा ही होगा.
कुछ डिसीजंस के लिए सेंट्रलाइजेशन भी होगा और बाकी डिसीजंस के लिए डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा। बट फ्योल ने हमको ये भी बताया है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे काम करता है, यू कैन यूज सेंट्रलाइजेशन ओवर देयर। व्हाई? बिकॉज ज्यादा लोग नहीं होंगे, छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके पास सारे बंदे एक्सपर्टाइज नहीं होंगे, सारे बंदे आपके पास स्किल्स ही नहीं होंगे। सो बेटर है कि आप सेंट्रलाइजेशन भी यूज कर सकते हो। बट व्हाट इज द परफेक्ट basically criteria for using these both terms? There should be balance. कैसे? फ्यूल सजेस्टेड कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ डिसीजंस आपके ऐसे होते हैं जो टॉप लेवल ही लेता है तो उसको सेंट्रलाइज्ड रहने दीजिए, एंड कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सेंट्रलाइजेशन पे बैठा हुआ बंदा जो टॉप लेवल पे बैठा है वो उसको डिस्पर्स्ड कर देता है एट अनदर लेवल, at other levels of the organization. Fine. So यहाँ पे हम decentralization चलेंगे. So what Fuel suggested, there should be parity between centralization and decentralization in the organization. फाइन, आई होप ये क्लियर है. अगेन ये बेटा आपके वेरी शॉर्ट पे पूछ लिया जाता है, अलग से सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, अलग से डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंड अलग से आपका एमसीक्यू आ जाता है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की क्या कंडीशन होनी चाहिए. मैंने इसलिए यहाँ नोट भी कर दिया है, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ऑल होनी चाहिए. आपको लगेगा यार सब पढ़ा है तो ऑल ही होगी, नहीं, ये कंडीशन इज द परफेक्ट कंडीशन फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. फाइन, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट देन मूव फॉरवर्ड. चलिए अब बात करते हैं सिक्स प्रिंसिपल की. सिक्स प्रिंसिपल हम किसको बोलेंगे? ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. व्हाट फ्यूल सजेस्टेड, देयर शुड बी प्रॉपर ऑर्डर ऑफ every material of organization and every person of the organization. कैसे? एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. ऑर्डर का मतलब सारी चीजें आपके एक ऑर्डर में होनी चाहिए, एक उसका फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए. द कीवर्ड हियर इज फिक्स्ड प्लेस फॉर मटीरियल एंड फॉर पर्सन्स. फिक्स्ड प्लेस का मतलब लाइक देयर इज अ वर्कर हु वांट्स टू टॉक टू हिज सुपीरियर. फाइन, he or she should know that this is the cabin of that person. If I want to talk to that person, so वो person मुझे उसी जगह पर, उसी प्लेस पे, उसी फिक्स्ड प्लेस पे, उसी फिक्स्ड केबिन में मिलेगा. सो इसकी वजह से क्या होगा, उस पर्टिकुलर वर्कर का टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसको सर्च करने में इधर से उधर जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली उस केबिन में जाएगा. उसको पता है कि मेरा जो सुपीरियर उस जगह मुझे बैठा मिलेगा तो मैं डायरेक्टली उससे वहां पे कम्युनिकेट कर पाऊंगा. फाइन. सो बेसिकली व्हाट फ्यूल सजेस्टेड, फ्यूल सेड देयर शुड बी फिक्स्ड प्लेस फॉर मटीरियल एंड फॉर पीपल हु आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. सो लोगों के लिए एक प्रॉपर केबिन बनवा दो एंड मटीरियल के लिए एक प्रॉपर रूम बनवा दो, या एक प्रॉपर टूल बॉक्स दे दो. फाइन. तो लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट. 7 पे चलते हैं. चलिए, 7th इज इनिशिएटिव. मैं यहां पे रिमार्क, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. आप देखिए टेलर की थ्योरी में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, सेम हम फ्योल की थ्योरी में पढ़ेंगे. इनिशिएटिव का मतलब देयर शुड बी ओपन विंडो पॉलिसीज फॉर योर वर्कर्स हु आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई? बिकॉज इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस, इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ ओपिनियन, सो उनको अपने सुपीरियर से, अपने मैनेजर से शेयर करने का प्रॉपर ओपनली उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए जहां पे हमारे वर्कर्स कैन टेक इनिशिएटिव. एंड इनिशिएटिव का यहाँ पे मैं कीवर्ड आपको दूंगी बेटा, सजेशंस. और आप यहाँ पे ले सकते हैं एक ओपिनियन, भी एक कीवर्ड के तरीके से काम करेगा. एंड इफ यू एज अ मैनेजर, you as a superior found that the initiative or that suggestion is good for my organization, so you can take that opinion in your plan. Fine. And secondly, you should क्या करना चाहिए आपको, उसको क्या करना चाहिए आपको, उसको इंसेंटिव भी देना चाहिए, सो दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन विल थिंक कि अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा सो आई विल गेट समथिंग. ऐसा नहीं है बेटा जो टॉप लेवल पे बैठे हैं दे आर द एक्सपर्टीज इन द फील्ड. कई बारी नीचे लेवल का बंदा भी एक अच्छा ओपिनियन सजेशन दे सकता है. सो व्हाट फ्यूल सेड, फ्यूल सजेस्टेड यस देयर शुड बी open window policy for the workers who are the part of the organization, so that they can share their views to their managers, their superiors, and if they found that these suggestions are good for their organization, so manager should pay some incentive to that worker so that they can get motivated. Fine. So this is the 7th principle given by the Henry Ford.
डन। चलिए लेट्स टॉक अबाउट 8th नंबर। 8th नंबर इज दिस वाला, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देयर शुड बी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन जनरल इंटरेस्ट। कैसे? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट कर दीजिए किससे? जनरल इंटरेस्ट। व्हाट डू मीन बाय जनरल इंटरेस्ट? जनरल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट डू मीन बाय इंडिविजुअल इंटरेस्ट? इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, या इंटरेस्ट ऑफ आप यहां कहेंगे एम्प्लॉयज या मैनेजर। इन शॉर्ट अगर हम इस वाले प्रिंसिपल की बात करते हैं, इसमें बोला है फियोल ने कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दबा देना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट को आपको बढ़ाए रखना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय जनरल इंटरेस्ट हियर? जनरल इंटरेस्ट मीन्स बेटा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू शुड थिंक अबाउट यू। बिल्कुल ठीक बात है, आपको सोचना चाहिए एज एन एम्प्लॉय यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि यहाँ पे मैं अपनी मर्जी, मेरा अपना कोई इंटरेस्ट है उसके लिए मैं काम करता हूँ, बट यू शुड नेवर फॉरगेट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल। इंटरेस्ट ऑफ जनरल मतलब इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यू शुड नॉट फॉरगेट इट। व्हाई? बिकॉज यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर गेटिंग द मनी फ्रॉम देयर ऑल्सो। अगर दैट ऑर्गेनाइजेशन विल गो अप, सो अल्टीमेटली यू विल ऑल्सो गो अप एज यू आर द पार्ट ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। सो फियोल ने क्या बोला? फियोल ने बोला कि अगर आप एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दबा लेते हो जनरल इंटरेस्ट के सामने, सो ये आपके लिए अच्छा होगा। वाई? बिकॉज एक एग्जाम्पल से सीखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आई लेट यू नो कैसे। सपोज देयर इज अ मैनेजर, देयर इज अ परचेज डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड हु इज गोइंग टू बाय द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर। उसने देखा, उसके पास 10 सप्लायर की लिस्ट थी, उसने देखा अरे यार ये वाला सप्लायर तो मेरा बंदा है, इससे मैं इसी से डील करूंगा। Although what was the responsibility of that purchase manager in that example, उसको 10 के 10 सप्लायर का कोटेशन मंगवाना चाहिए था, उनको एक बारी गो थ्रू करना चाहिए था, एंड जो उसको बेस्ट डिस्काउंट या बेस्ट डील देता उसको सेलेक्ट करना चाहिए था। दैट वाज द जनरल इंटरेस्ट देयर। बट व्हाट बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर डिड, ही डिड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। What he did according to the individual interest। उसने देखा कि ये बंदा मेरा है, अगर मैं इससे बाय करूंगा सो ज्यादा अच्छा रहेगा, चाहे ये मुझे महंगा दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जा रहा है जाने दो, लेकिन मुझे महंगा मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं अपने बंदे से ही लूंगा। सो बेसिकली यहाँ पे मैनेजर ने क्या किया, यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट के परचेज मैनेजर ने बेटा क्या किया, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अप रखा और जनरल इंटरेस्ट को दबा दिया। जबकि व्हाट फ्योल सेड देयर शुड बी इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपका लेस देन होना चाहिए एज द जनरल इंटरेस्ट, ओवर जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉरवर्ड। फाइन, अब हम चलते हैं 9th की तरफ। बेटा इतनी डिटेल में आपको कीवर्ड के साथ समझा रही हूं, आई होप एमसीक्यूज आप कभी भी कोई एमसीक्यू छोड़ ही नहीं सकते इस टॉपिक से, क्योंकि ये दो थ्योरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, टेलर और फ्योल। इसलिए बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग के लिए रुक जाइए, पर पहले आप हमें टेलर की थ्योरी करा दीजिए। जहां मैंने टेलर की कराई तो वहां मुझे फ्योल की करानी ही पड़ती, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिव और सिमिलैरिटीज में जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। फाइन, सो इसलिए मुझे ये टॉपिक लेके आना पड़ा। बट ऑर्गेनाइजिंग हम इसको कंप्लीट करते ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे। बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मार्क माई वर्ड्स बेटा, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फॉर ईच एंड एवरी program related to commerce or management. These are both important topics for any kind of examination, whether you are going to prepare for your competitive examination or a 12th examination, your BCom, BBA, MBA, for any kind of program related to management or commerce. Fine, चलिए 8th हो गया, 7th, 8th, अब 9th। 9th आता है इक्विटी। नाउ इक्विटी का मतलब क्या है बेटा, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। इक्विटी इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी, ये आपको पता है। इक्विटी का मतलब है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू द जेंडर, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनैलिटी ऑफ द employed in the organization. It means very important, अगर मैं आपको बोलूं एक कीवर्ड देती हूं इक्विटी का, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी जस्ट ट्रीटमेंट,
जस्ट मतलब आपको सबके साथ जस्टिस करना होगा, आपको किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ विच पैरामीटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। इसमें पूरी मूवी बनी हुई है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। इसमें बेसिकली वो यही बोलते हैं कि आपको इन सबको नजरअंदाज करके ही आपको इस वाले प्रिंसिपल पे काम करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज विल राइज एंड देयर विल बी लेस एम्प्लॉय टर्नओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड योर पर्टिकुलर जो आपका एम्प्लॉय है वो आपके लिए बहुत लॉयल हो जाएगा, आपके लिए अच्छा काम करेगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा। सो अल्टीमेटली योर ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो टाइम टू टाइम। फाइन। सो बेसिकली देयर शुड बी इक्विटी। अब आपका एग्जाम में